Good morning, everyone. Thank you for joining. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Uh, so, guys, again, extremely sorry for yesterday. I know there was some power cut issue at my end. Sorry for that late minute call. Okay. So, guys, from today, Satyajit has given one good news about the consumption. Satyajit, वो news कहाँ पे था? कौन से पेपर में था सर वो? यही फ्रंट में आप खोले है ना, वही तो सामने था। ही था क्या? अच्छा हाँ. हाँ, Okay. यही। अच्छा हाँ. Can you tell this news? What was it? Okay, sir, sure. So good morning, everyone. I would like to share the Indian consumption spending is shifting, which we are talking to our morning calls from last two. बोलती हूँ मैं हाँ वही बोल देना मैं भी Sorry, Satyajit, तुम mute हो गए. Sorry. Sure, sir. So the news is regarding the consumption spending shift in India. Indians are now spending more on service like telecom, travel, tourism, food, and medical services instead of buying consumer goods like home care items, beverages, and appliances. It means the service sector is growing faster than traditional consumer goods sector. Consumer sectors is expecting to grow. Service sector is expected to grow 19%. Consumer goods are only growing around 4%. So, urban consumption is also recovering faster than rural, especially led by services. Like consumer services is leading in urban consumption, and consumer goods sector falling demand in consumer goods sector demands in falling, like home and personal care demand has fell by from 13% to 4%, and food beverages is down to 6% from 17%. Appliances are sharply down from 19% to 3% demand, and this all is due to high inflation, urban slowdown, and consumer preferences are changing from service to experiences over things. Like people are preferencing experiences and services over things. And consumer service sector is gaining a strong demand due to in which retail sector is expected to grow 16 to 18%. Telecom sector is expected to grow around 18%. Travel and tourism is booming to 21% in FY25. And demand growth is driven by revenge traveling, like people are traveling a lot, and rising middle class. What is rising middle class families and digital access and premiumization. So in FY26, we can say that there will be a rebound in demand, goods demand, but service sectors still are dominating these sectors. ये इतना सब यहाँ पे लिखा है, इतना सब कहाँ पे लिखा है यहाँ पे? So numbers on the board. Okay. So guys, as we were discussing, that where is the demand coming from? The next demand will come from, obviously it is not coming from the consumer durables. यहाँ पे cars हो गए, घर हो गए. Reason because when your income decreases, your disposal income increases, probably demand is peaked out. हम देख रहे हैं कि auto sales are not growing, flat हो गए काफी auto sales. It expected decline. Now, as we were discussing from the last 2 to 3 months, same thing that the if someone is asking me where will I spend my money, I have a car, I have a house, probably it will be the retail means your shopping, clothes, or probably travel. The travel is the first preference. Tourism largely led by telecom, travel, and tourism. Food and medical, तो ठीक है, that's a different thing, but food second is your QSR, where we spend. And now when we talk about inflation, आज inflation का ही news था, that inflation has again eased out. Sejal, can you tell the news? Yes, sir. So good morning, everyone. So today news was retail inflation was decreasing by 2.6%. The also the it it is mainly due to decrease in vegetable and pulses, which include mustard oil, increased by 24%.
and tomato decreased by 24%. Urad dal is again decreased by 8.5%. Wheat was 1.7%, and onions was decreased by 2.6%. This is mainly due to fall in better supply chain, and also essential commodity index was declined by 1.8% year on year. market cap Also, again a small cap company ऊपर से ये भी काफी करेक्ट sorry. also a core inflation which is 4.5% increased by 4.5%, and also the overall food inflation will be stays between 2.9% to 3.7% in Q1 FY26. This was mainly due to a lower commodity price and high base effect. What is the conclusion of this news? So, sir, the food inflation is decreasing. This is because of uh, better supply, essential commodity, and vegetable prices, decreasing vegetable prices. Okay. So there will be a commodity issue in the company. Okay. So guys, I see again, inflation is declining, so it will increase your. So FMCG will be in focus. Yesterday, Dabur was up because of. So the Imami was up 6%, is because of the palm oil declining by 10%. So overall, the inflation is pulling up. So FMCG is in focus now. These are all microeconomic indicators that you need to connect the dots with FMCG, and as well as spending power of Indian. So how the economy is helping to grow योर स्पेसिफिक बिजनेसेस. तो हम जब सेक्टर फॉलो करते हैं ना, सेक्टर फॉलो मतलब हमें ऐसा ऑटो पकड़ के नहीं बैठना होता है. वी हैव टू ऑल्सो टॉक अबाउट द इकोनॉमी, बिकॉज अगर तुमको इकोनॉमी नहीं पता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एनी अदर सेक्टर. तो ये होता है ऐसा. दैट इज वाई नो मैं वो इंडिया के बाहर नहीं जाता. When it comes to exports, I don't talk much about export. It's because I don't understand the economy. We stay in India, we understand कि exactly हो क्या रहा है, and हमको दिख रहा है गाड़ियों के सेल्स नहीं हो रहे हैं, पर इन्फ्लेशन कम हो रहा है, कमोडिटी प्राइसेस कम हो रहे हैं. तो कमोडिटी प्राइस कम हो रहे हैं, तो इन्फ्लेशन अगर इंडिया में कम हो रहा है तो ऑब्वियसली तुम्हारा डिस्पोजल इनकम बढ़ेगा. इफ योर डिस्पोजल इनकम इज इंक्रीजिंग, ऑब्वियसली यू विल स्पेंड ऑन थिंग्स लाइक दिस. सी तुम्हारा क्या दूध का प्राइस कम हो गया, तुम जाके घर नहीं लोगे, करेक्ट ना? और मे बी और वेजिटेबल प्राइस ऑफ डिक्लाइन, तो जाके चलो तुम लेट्स से महीने का 10,000 रुपया खर्चा करने के, अभी 9,000 रुपया हो रहा है, तो क्या 1,000 के डिफरेंस में जाके गाड़ी लोगे या घर लोगे? Where will you spend that 1,000 rupees? Example. Mostly, might be if I am spending it on food only. If I have allocated that to food, I'll buy an extra pizza for that month. Let's suppose like that. Extra pizza. मतलब पिज्जा इन द सेंस, मतलब पिज्जा हाँ, खरीद लूंगा मैं pizza खरीद खाने लूंगा. खाने के लिए ऐसा. Correct. Aarti, can you tell your news about Nykaa? Aarti? Okay. So there was a news of Nykaa. This Aarti has sent. कि वो let me read it. So Nykaa delivers a Q1 growth of almost 27% and targets 500 stores in by FY20. So the GMV, gross merchandise value, has increased 27%, specifically in the beauty and personal care business. तो ये पहले भी आया था न्यूज़ एक बार, but again I think I'm not sure in which newspaper it came. But again we are saying that there is a growth in the beauty and the personal care business. So वही जब तुम्हारा बचता है पैसा, वो इधर भी आता है थोड़ा बहुत. पर्सनल केयर, probably you will try to take some premium products, थोड़ा और ध्यान रखोगे खुद पे. So Nykaa has also said that it will be eyeing almost will be setting up stores in tier 3 cities to expand the retail to 500 stores by 2030, while its superstores now serves 2.3 fine. सर इसके अंदर ही related actually, if you see in the yesterday's newspaper and news articles also, nowadays lot of news articles are coming that is saying that most of the, like for example, in yesterday's newspaper there was article related to Amazon beauty segment.
and they were saying that 65% of the new customers that they are on, whatever the customers that they are onboarding, 65% of that customers are coming from tier 2, tier 3, and tier 4 cities, as well as whatever the orders that they are getting on their platform. Of that, 70% is coming from tier 2, tier 3, and tier 4 cities. Oh, is it? Yes. That was the news actually. मतलब मैंने ये पूरा आर्टिकल इसीलिए मैंने पढ़ा था, और वो जो मैंने आपको वॉइस नोट भेजा था बाद में, एक्चुअली मैं लेट हो गया, उसको अपने इसमें ही भेज लिया था वो मैंने। तो उसके अंदर भी ये चीज मेंशन था। एक सेकंड ना सर, मैं खोल के आपको मतलब वो बता देता हूँ प्रॉपर। मैंने उसको बुक मार्क किया है। सो कल रिलायंस एफएमसीजी के इस पे भी था। मतलब व्हाट आई एम सीइंग इज nowadays there are lot of article which is emphasizing that tier 2, tier 3, and tier 4 cities are showing lot of demand, like that. In today's news article also there were lot of news which talked about it. अब जैसे कल विप्रो के भी कंज्यूमर केयर का एक आर्टिकल था कल के न्यूज़पेपर में, एंड इट आल्सो टॉक्ड अबाउट दैट रूरल डिमांड इज डूइंग वेरी वेल, बट अर्बन डिमांड हैज बीन रिकवरिंग नाउ फ्रॉम December of 2024, like that. ओके अर्बन डिम, हाँ वो भी कल भी था, करेक्ट। अर्बन So डिम मतलब what we are seeing, मतलब just to add to that point कि tier 3, tier 2, tier 3, tier 4 cities are increasing their share into the demand of FMCGs and autos, but also at the same time मतलब कि there are brands which are coming offline. So जो digital first वाले businesses थे सिर्फ, now they are opening their new stores and they are coming to offline stores. Because of that, the commercial properties demand is also increasing as compared to the retail real estate, like that. कमर्शियल रियल एस्टेट इंक्रीजिंग, करेक्ट करेक्ट। उस दिन So भी ये था ना न्यूज़ में, कमर्शियल यस, अभी था। आज के भी न्यूज़पेपर में यही था। सो मतलब कि ब्रांड्स अभी सिर्फ ऑनलाइन नहीं जा रहे, अभी ऑफलाइन ज्यादा आ रहे हैं। सैमसंग का भी एक था कि उनका 70%, अभी जितना भी लोग खरीद रहे हैं 70% प्रीमियम फोन्स उनके टियर 2 सिटीज से आ रहे हैं ऑर्डर। ओके, ओह इज इट? Yes, today's news article only. I'll just tell you which Yeah, which on से news. Yeah, just a second. मैंने उसको bookmark किया है. It is in Business Line, page number 2. So it is like uh, Samsung का जो मतलब they have a foldable phone, right? Which करेक्ट, हाँ cost 1.1 lakh rupees. हाँ And now they are getting traction for it from tier 2 and tier 3 cities as well. And there is one data point, कहाँ गया वो? 70%. Smart Pro, एक second. There will be 20% increase in our, कहाँ गया वो data point? Give me a phone which is. So now the consumer preference is coming to कि I'll not buy a phone which is of cost like 30,000 or 40,000. Now I will be buying phone which has an EMI of 4,000, like that. करेक्ट, हाँ वो ईएमआई ऑप्शन भी बढ़ गया। Yes. So मतलब मैं ये न्यूज़ आर्टिकल से पिछले 2-3 दिन से पढ़ के बस एक डॉट कनेक्ट करके आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज समथिंग दैट आई एम नोटिसिंग, मतलब ऐसा। ओके ओके। राधिका, will you tell your news again? वो Sir, रूरल can I add? डिमांड। Sir, can I add to या the या Reliance FMCG business? So, सर कल जो रिलायंस प्लान कर रहा है कि 1 मिलियन उसका अभी जो जनरल किराना स्टोर्स होते हैं ना, जो पहले से थे, वो अभी 1 मिलियन है। वो लोग 2 to 3 years में दे आर प्लानिंग इट टू रीच टू 4 to 5 मिलियन। और उनका अभी सेल्स है 11,500 करोड़ फ्रॉम रिलायंस कंज्यूमर बिजनेस। तो जो उनका रेवेन्यू का 1% है, एंड दे आर प्लानिंग इट टू टेक इट टू 25, मतलब डबल करना चाहते हैं 2-3 साल में उसको। नहीं समझा नहीं, सॉरी, कम अगेन। ओके, उनके जो स्टोर्स पे रीच है ना, जो लोकल किराना स्टोर्स होते हैं, हाँ, वो अभी 1 मिलियन रीच है उनकी, इसके रिलायंस के। रिलायंस एफएमसीजी बिजनेस की। हाँ और वो अभी 4 to 5 मिलियन टारगेट कर रहे हैं वो लोग नेक्स्ट 3 years में। और HUL 9 मिलियन किराना स्टोर्स तक रीच है उसका। ओके एंड ऑलरेडी रिलायंस ने 2022 में ये बिजनेस स्टार्ट किया था, जो अभी 2025 तक जो लास्ट क्वार्टर खत्म हुआ, Q4
FY 24-25 उसमें उसने ऑलरेडी 11,500 करोड़ का बिजनेस किया, जो अभी 8th पोजीशन पे, इट इज ऑलरेडी अहेड ऑफ डाबर एंड इमामी। उनसे ज्यादा बिजनेस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ तो रेवेन्यू। कंक्लूजन क्या है इसका? हाउ इज कंक्लूजन? हाँ सर, कंक्लूजन ये है कि ये जो डबल करने वाला है इधर से भी बिजनेस, उससे उसके रेवेन्यू को इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज दैट विल बी जस्ट 2% ऑफ देयर बिजनेस। बट आरसीपीएल का वो लोग आईपीओ ला रहे हैं 2-3 साल, सो उधर सॉरी। वैल्यू, वो लोग आईपीओ ला रहे हैं एफएमसीजी बिजनेस का, ओके। जिसको वो आरसीपीएल बोलते हैं इन शॉर्ट, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। हम्म। तो उधर उनका वैल्यू अनलॉकिंग होगा, और जो प्रेजेंट ब्रांड्स हैं जो एफएमसीजी में, उनके ग्रोथ को थोड़ा इम्पेक्ट हो सकता है सर। हो सकता है, करेक्ट। हाँ, रिलायंस भी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ही ज्यादा फोकस हो हाँ, रहा है। थिंक वो मैं कैंपा टीयर कोला एंड ऑल दे आर वहाँ पे ही वो लोग का स्पेसिफिक। तभी रिलायंस प्रॉब्लम है, रिलायंस कंज्यूमर में क्या क्या बेचता है उसका आइडिया नहीं ना उनको। रिलायंस कंज्यूमर बेचता क्या क्या है? वो अभी मैंने कल सर्च किया, वो लोग क्या क्या बेचते हैं। तो दे आर, अभी एक तो कैंपा कोला, वो लोग तो एक्वायर कर रहे हैं एक तो बिजनेसेस को। हम्म वो उनका एक स्प्रेड्स एंड सॉसेस बेचते हैं। बेवरेजेस में उनका कैंपा स्पिनर्स, नेक्टो ब्रू हाउस, रस्किक, ग्लूको एनर्जी, ये सब बेच रहे हैं। पर्सनल केयर में वेलवेट, ग्लीमर, प्यूरिक, ये 3 चीजें बेच रहे हैं। तो मैं गया था देखने रिलायंस के स्टोर में। मैं हम्म टायर 3 सिटीज से बिलोंग करता हूँ। हम्म तो सर उधर कैंपा आउट ऑफ स्टॉक था। मैं डीमार्ट भी गया, मैंने बोला डीमार्ट में है क्या, तो उधर भी हम्म। आउट ऑफ स्टॉक। वो डिमांड की वजह से था या प्रॉपर उनका मैनेजमेंट नहीं है, वो समझ नहीं आया। बट ये मेरा ऑब्जर्वेशन था। हाँ, अभी तो स्केलिंग अप, पता नहीं लास्ट टाइम वो जियो भी, एक जियो मार्ट भी चालू हुआ था विच डिडंट वर्क आउट। हाँ, तो जियो वापस कर रहे मार्ट, हैं। जियो मार्ट हम मैम टायर 3 सिटीज में इधर ब्लिंकिट नहीं है हम्म। और जेप्टो वगैरह नहीं है, बट इधर जियो मार्ट है। है क्या? अच्छा, ओके। सो मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, अहमदाबाद के बाजू में से। सो ओके। सो उधर ये सिनेरियो मुझे देखने मिला। और सैमसंग की भी स्टोर्स, अभी द लास्ट पर्सन हु स्पोक, सैमसंग की भी स्टोर इधर आए हैं। फिर मेरे फ्रेंड का भी मैं फ़ोन लेने गया था लास्ट वीक ही। तो हम्म। अ, वो भी सही बात है कि सैमसंग मतलब जो ऑफलाइन सेल्स है वो ज़्यादा आ रही है। वही मतलब वो टीयर 2 टीयर 3 में है ना, यूजुअली ये तुम्हारा ग्रोथ आ रहा है, दिख रहा है वो ना, इट इज विजिबल। एंड अर्बन, इफ अर्बन इज पिकिंग अप देन एफएमसीजी इज इन द स्वीट स्पॉट करंटली। अगर यस। डिमांड अर्बन में पिकअप हो रहा है तो हाँ एफएमसीजी, सॉरी, रूरल इज ग्रोइंग। ये भी है जरा यार राधिका, this data which says tractor sales are up. हाँ राधिका। अच्छा, okay, sir. Just a minute, sir. Okay, so good morning, everyone. So to talk about the current news, tractor sales in India were up 10% year on year to 121K units in June. This was mostly due to the early arrival in the southwest, early arrival of monsoon in the southwest, and the improved will of kharif crop, and also due to the government support measures. And if we compare it to the May 2025, sales were up 22% due to the strong rural sentiment. Also, in the June, the exports, the tractor exports were up 13% year on year to 1.6K, and also domestic sales were up 13% year on year to 51.7K. This is mostly due to the rise in production, especially rice, wheat, and pulses, and also due to the increase in government incentives. And to talk about company specific, Escorts Kubota, which specialization in tractor manufacturing, sold 11.4K tractors in June, a 2.2% year on year rise. And the company said that this is mostly due to the higher support price provided by the government, above normal monsoon prediction, and increased credit availability in rural India. Also, the experts expect the trend to continue in July as well. Okay, so there's a lot of data point नहीं, but I will say general knowledge about केवल ये रूरल सर मैंने इसको ना मतलब। इससे कनेक्ट किया कि ना लास्ट मतलब मैंने ही लिखा था कि खरीफ क्रॉप का ना यील्ड बढ़ रहा है।
हम्म। तो ना खरीफ क्रॉप का यील्ड बढ़ रहा है, जिसके वजह से मोस्टली इधर भी लिखा है कि ना ये जो राइज आया ट्रैक्टर के सेल्स में, वो मोस्टली ड्यू टू इज खरीफ खरीफ इम्प्रूव खरीफ क्रॉप। फाइव क्रॉप, यस। हाँ, और अगर खरीफ का हाईएस्ट। हाँ अगर ये अगर खरीफ क्रॉप्स का बढ़ रहा है तो रूरल में डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ेगा, क्योंकि करेक्ट। उनका इस बार एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा है, और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। बढ़ेगा। एंड वो सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट इज आल्सो हेल्पिंग, थैंक्स यस टू सर, एमएसपी एमएसपी। एमएसपी बढ़ी है ना सर, इसलिए। या तो अभी राधिका, यू नीड टू नो दैट ओवरऑल इफ आई आस्क यू ऑन डेटा पॉइंट कि कितना सोइंग हुआ है, खरीफ का कितना होता है एकर्स में आ, वो। हाँ सर, एक हाँ। मिनट, मैंने वो हाँ, लिखा है। एमएसपी कितना है? हाँ सर, जस्ट मिनट। Sir, in yesterday's news article, there was very good article related to newspaper. There was very good article related to MSP. Uh, क्या अगर है? वो मतलब जस्ट अ सेकंड, अगर राधिका ने पढ़ा होगा तो वो बता दे, वरना मैं बताता हूँ, एक सेकंड। एक सेकंड। या सो इसके अंदर एक चीज ये बताई थी, जैसे लाइक this is a counterintuitive point that what we are seeing, that MSP price like minimum support price by the government has been increased for kharif crops, right? हम्म। But if you see of the overall increment of the crops that they have done, in that major of kharif crop is tur dal, moong or and urad, हम्म। right? And हम्म। for that, government has only increased MSP by 6% for tur, 0.99% for moong, and 5.41% for urad. Okay. What is now in MSP, there is a rule that whatever is the cost plus 50%, that is what government gives to the farmer as an MSP. ओके। Okay. But if you see what they have increased, so जैसे एग्जांपल के अगर जो मूंग का कल्टीवेशन करता है, so according to government उसके लिए inflation in cultivating moong has only increased by 0.5%, which is not true. फर्टिलाइजर्स के प्राइस बढ़े हैं, उसके बाद में ट्रैक्टर्स के प्राइस भी मतलब अगर बढ़े हैं ऐसे, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि रूरल डिमांड विल रिकवर, बट नॉट टू द एक्सटेंट दैट वी आर एक्सपेक्टिंग बिकॉज ऑफ एमएसपी. Reason being, government has not increased it to that extent. For example, they have increased MSP for ragi by 18%. For ओके। millets they have increased it by 12 to 18%. But for traditional crops, they have increased it by 5 to 6%. ओके। So that is the reason why मतलब मैं कल DMart भी गया था. Now I am seeing that millets and ragis are available in abundance in DMart, and it commands premium as well. So Tata Soulful का मैंने कल देखा, हाँ, और चौकोस का देखा, मतलब फिर ठीक है। उसके डीमार्ट बाद में टाटा सोफुल दिखते हैं डीमार्ट में। हाँ टाटा सोलफुल दिखा मुझे. बट मेरे को एक चीज ये लगी कि उसका जो पैकेजिंग है ना, इट्स वेरी बैड. वेरी बैड, उसका हाँ, आई वाज कमिंग ऑन दैट, हाँ। या मतलब कि their backside is so attractive. If they would have put backside of the packet in the front, that would have been more attractive. And देखा केलॉग्स Saffola के का सामने वो अच्छा नहीं हम्म दिखता है। Saffola का पैकेजिंग इज वेरी जेंजी. एंड उसके अलावा मतलब कि या मतलब कि मोस्टली मेरे को यही लगा कि उसका पैकेजिंग इतना नहीं अच्छा है, लेकिन टाटा टाटा का टी के अंदर पैकेजिंग बहुत प्रीमियम है. सो अगर आप ब्रुक बॉन्ड से कंपेयर करेंगे, आप नेस्ले के पैकेट से कंपेयर करेंगे, तो उसकी पैकेजिंग ऑफ टाटा टी इज वेरी गुड. ओके। ओके। ऐसा इट लुक्स अट्रैक्टिव लाइक या। दैट. ओके। सर, हाँ, हाँ। हाँ सर, तो खरीफ सोइंग के इसमें, इफ यू टॉक अबाउट द खरीफ सोइंग, ओवरऑल खरीफ सोइंग इस बार हुआ है 108 मिलियन एकर्स, विच इज अप 11% ईयर ऑन ईयर. एंड ओके। हाँ, और पल्सेस, मोस्टली ना पल्सेस में सबसे ज्यादा हुआ है, 35% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है टू 10 मिलियन एकर्स. 10 मिलियन एकर्स। हाँ सर. ओके। ओके। और सर, ये जो अभी ना जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव भी है, बेसिकली इट्स कॉल्ड इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स. सो बेसिकली गवर्नमेंट इस कमिंग इयर्स में मिलेट्स पे बहुत ज्यादा ये करने वाली है फोकस, बिकॉज वो एक हाई यील्ड क्रॉप है जिसके प्राइसेस भी एक्सपोर्ट मार्केट में तो बहुत ज्यादा है. ओके। हाँ, तो वो एक है, और
एज कम्पेयर टू, मतलब सर डेटा नहीं था, सिर्फ इतना था कि ना अगर इफ वी टॉक अबाउट टीसीपीएल पॉइंट ऑफ व्यू, जो कॉफी एक्सपोर्ट्स है वो ऐसा लिखा था कि से डबल्ड हो गए इंडिया के। अच्छा, कॉफी हाँ एक्सपोर्ट डबल हो गए, ओके। हाँ 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 हाँ। ओके यस, ये डेटा एक था। ओके ओके। हम्म। ओके सो गुड डेटा है, ये सब डेटा ना आई थिंक इंटरव्यूज में काम आता है व्हेन वी टॉक अबाउट ना कि एमएसपी बढ़ रहा है, खरीफ सोइंग बढ़ रही है, तो वी शुड टॉक अबाउट डेटा पॉइंट्स की क्या कितना था कितना हो रहा है। एंड ऑब्वियसली खरीफ इज वो खरीफ खरीफ क्रॉप्स में यूजुअली यू रिक्वायर लॉट ऑफ रेन, लॉट ऑफ वाटर रादर, तो वो मानसून में ही होता है। उसके बाद राबी होता है, राबी इज फॉर यूजुअली विंटर। तो विंटर सीजन का सोइंग जैसे खरीफ खत्म होता है वैसे अपने इंडिया में विंटर चालू होता है। हाँ, तो ये सब चीजें ना हमने स्कूल में ज्योग्राफी में पढ़ी थी, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, फिर मॉनसून। ठीक है, अभी हमको तो पता है मॉनसून कब आता है, बट वेव्स विंड्स कब आते हैं, सोइंग कब होती है। तो ये सब ना मैंने बाद में मतलब 25 साल बाद वापस पढ़ा था ये, मतलब व्हेन आई वाज 25 एट दैट टाइम आई अंडरस्टूड, अरे ये सब चीजें हमने स्कूल में पढ़ी थी जो अभी काम में आ रही है। तभी तो कभी सीरियसली पढ़ी नहीं, तभी तो सिर्फ एग्जाम देने थे इसके लिए पढ़ी थी। बट ना फिर वहां से चलो कि खरीफ क्रॉप्स कौन से होते हैं, फिर खरीफ क्यों बोलते हैं उनको, पहले बात तो खरीफ क्यों बोलते हैं, फिर रबी क्यों बोलते हैं, क्या फर्क है, ट्रैक्टर्स ट्रैक्टर्स का सेल्स कब होता है ज्यादा, एंड फिर उसके लिए कौन से फर्टिलाइजर्स लगते हैं। तो इसमें न बैक बैक ऑफ द माइंड, अगर तुमको अगर यू आर फॉलोइंग द रूरल मार्केट, तो अगर नो फार्मिंग सेक्टर की बात करें तो उसमें फर्टिलाइजर्स भी आते हैं। फर्टिलाइजर्स में देर इज वो रैलीज इंडिया है, कोरोमंडल है, यूपीएल है ना। इन माई इंटरव्यूज ना मैंने वो आंसर देते, मुझे अभी भी याद है। ऐसे मई जून का ही टाइम था, एंड आई वाज गोइंग फॉर इंटरव्यू इन अरियन कैपिटल। तो वहां पे मुझे ये सब वो बोल रहा था कि एमएसपी बढ़े, तभी भी ऐसा हुआ था कुछ 8 8 साल पहले। तो तभी भी आई स्टिल रिमेम्बर ना, आई स्टिल रिमेम्बर सी दोस पॉइंट्स, आई स्टिल रिमेम्बर नाउ, बिकॉज हमने इतना कुछ पढ़ा था उसमें। तो ये सब हो रहा था ना, तो मेरे बॉस ने ये बोला था कि अरे यार ये सब हो रहा है तो ऋषभ व्हाई डोंट वी लुक एट द फर्टिलाइजर सेक्टर, बिकॉज इफ दिस ऑल थिंग्स आर ग्रोइंग, मतलब अगर तुम खरीफ सीजन क्रॉप्स सोइंग हो रहा है तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजर तो लगेगा ही। एंड देन इसमें क्या क्या अलग अलग फर्टिलाइजर्स होते हैं, बेसिक था, ज्यादा मैं डीप नहीं गया था। थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगा था बात करने में, बिकॉज उसमें वो डीपीके एंड बहुत कुछ आता है। वी डोंट नो दैट, हमने स्कूल में पढ़ा था वो सब, बट फॉस्फेट होता है एंड आई स्टिल आई डोंट रिमेम्बर। Yes, these are two of the most used in fertilizers. हाँ, क्या था वो, डीपीके, हाँ टीपीके, DPK and NKP, ऐसा कुछ तो एनकेपी, हाँ करके है। हाँ ऐसा कुछ तो है। तो बिकॉज आई वॉज रीडिंग भारत रसायन, अच्छा। सो उसके अंदर और एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग मालूम है सर, इसमें ये रहती है। सो देर आर कॉपर प्लांट्स हु हैव वेस्ट ऑफ कॉपर, राइट? हम्म। So when they produce like from copper cathode, when they from the copper rod they produce copper cathode, there is waste that comes out, which is this fertilizers. ओह इज इट, अच्छा। Yes. कौन इसे भारत रसायन करता है क्या ये? ये भारत रसायन नहीं करता है, मैं किरी इंडस्ट्रीज करके कंपनी है डाई की, तो वो अच्छा। मूव कर रही थी कॉपर में। So I was reading that company. I got to know from that because I did like my one of my friend did visit to Birla Copper. एंड सो ही सेड दैट कि ऐसा एक प्रोसेस होता है एंड किरी इंडस्ट्रीज इज सेटिंग अप दैट, ऐसा करके। सो फ्रॉम दैट वी गॉट टू नो, और उसका प्रोडक्शन भी अच्छा रहता है, सो दे विल बी गेटिंग सेल्स फ्रॉम फर्टिलाइजर एज वेल एज कॉपर कैथोड, लाइक दैट। ओके ओके। अच्छा, ये मेरे को नहीं पता था, बिकॉज वो मेरे को सेक्टर थोड़ा हाँ, डिफिकल्ट है समझने वो को। भारत रसायन मेरे को हाँ भी समझने में सर वो हाँ, 15 20 दिन गया डिफिकल्ट है, हाँ था। वो डिफिकल्ट है, करेक्ट, हाँ हाँ, यस याद है। भारत रसायन तभी तो काफी स्मॉल कैप स्टॉक था तो हमने नहीं देखा था। यस। अभी तो भी इसका बढ़ गया है। पड़ गया, यस। पर वो सेक्टर्स फिर वो क्या है, इंटरव्यू में बात करने को थोड़ा डिफिकल्ट, तो कैसा ऐसा कुछ हुआ तो बात कर सकते हैं। अरे हाँ, डोंट गो डीप इनटू इट। हाँ सर, या पता है, थोड़ा थोड़ा पता है, ऊपर 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 से, हाँ पता है हाँ। पता है, हाँ। सो गाइस अगेन ये भी है वापस वो उस दिन कमर्शियल व्हीकल्स का भी आया था। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज हैपनिंग इन कमर्शियल व्हीकल्स, बट डालमर इज द पार्ट ऑफ मर्सिडीज, उसका एक प्रोडक्ट है वो, इंक्रीजिंग फोकस ऑन इंडिया फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट। सो डोमेस्टिक में आई एम नॉट श्योर व्हाट इज हैपनिंग इन द कमर्शियल व्हीकल्स। वो बोल तो रहे हैं बिकॉज ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है। एट द सेम टाइम वहाँ पे न्यूज भी आती है कि ब्रिज गिर गया, ये हो गया वो हो गया। It is quite difficult to understand what is happening in India on this political point of view, because commercial ना, पूरा commercial vehicles का growth it will happen only because of infrastructure.
हम्म अगर इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है तो ही कमर्शियल का ग्रो होगा, वरना एंड यू नो द लाइफ ऑफ अ कमर्शियल, वो जो ट्रक्स का होता है 20-20 साल होते हैं, 15-15 20-20 साल, पीपल डोंट चेंज इट, yeah, कि बहुत महंगे होते हैं ऐसे तो। MG Motors is also coming into this, हाँ JSW. वही कि ये दिस इज, हम्म आई एम नॉट श्योर व्हाट इज हैपनिंग, प्रोबेबली ना देयर माइट बी अ न्यूज ऑफ स्क्रैपेज पॉलिसी। ऐसा हो गया तो अशोक लेलैंड विल बूस्ट, अशोक लेलैंड, हम्म टाटा मोटर्स, हम्म, right. हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से वो सब लोग ने एक साथ कमेंट किया, एमजी बोला, नाउ दिस द ही सेइंग नाउ योर डालमर इज सेइंग, महिंद्रा ने बोला कि विल लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स, महिंद्रा के Hmm. न्यूज में भी था कि दे आर लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स इनटू कमर्शियल व्हीकल्स एज वेल। There is too much of backlash for the scrappage policy in Delhi, but that is for personal vehicles. पर्सनल व्हीकल्स, हाँ वो So, तो निकाल दिया ना, हाँ। मतलब I'm just thinking whether scrappage policy will hold in India or not, because people buy it with the perspective that कि अभी खरीद लिया चलाएंगे 15-20 साल हाँ ऐसे करके, so देखते हैं। गाड़ियों में तो नहीं, बट कमर्शियल में शायद से, बिकॉज इट इज वो इम्पैक्ट होता है ना, पोल्यूशन पे इम्पैक्ट होता है। एंड हम्म, आजकल वो नए नॉर्म्स भी निकले कि शुड हैव एसी केबिन्स एंड ये सब है, तो इट या इज वो गुड कॉस्ट फॉर, बढ़ेगा। हाँ एंड इट इज गुड फॉर अ ड्राइवर एज वेल, क्योंकि वो हम्म ड्राइवर्स जो होते हैं ना, यू लुक एट, इफ यू लुक एट देयर हालत जो होती है, इतने वो गर्मी में ट्रैवल करते इतना दूर, yes, बट actually my mama has his own transport company, एंड अच्छा उनको ओके, उनको मतलब कि उनके इसमें ऐसा ही है कि जो ड्राइवर्स होते हैं उनकी हालत सच्ची में बहुत ज़्यादा खराब होती है। खराब होती है, वो करेक्ट, इतना गर्मी और चोरी भी बहुत होती है बिकॉज दे डोंट हैव अ प्रॉपर केबिन टू लॉक, केबिन टू लॉक, करेक्ट। सो ये सब बहुत इश्यूज होते हैं उसमें। दो कॉस्ट बढ़ेंगी, बट यू नो इट इज हम्म फॉर, तो क्या है, वो एक बीच में काफी सालों पहले एक आर्टिकल भी था कि ना ड्राइवर्स आर डिक्रीजिंग इन इंडिया, ये ट्रक ड्राइवर्स, बिकॉज ऑब्वियसली द ट्रक ड्राइवर्स पीपल, देयर फैमिली डोंट वांट देयर चिल्ड्रन टू बी अ ट्रक ड्राइवर, है ना, तो वो भी डिमांड कम, बहुत पहले था एक आर्टिकल। it's just like farmers। हाँ, हाँ, लाइक फार्मर्स, वैसे तो देयर इज नो इंसेंटिव, देन व्हाई वुड yeah, यू डू दैट, हम्म। तो फार्मर्स के लिए तो ये हो रहा है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज इंक्रीजिंग, सो हाँ probably yes। family should not focus, मतलब not go from tier metro cities में आने, they are saying कि नहीं फार्मिंग ही करो, now people are हम्म from metro cities are going to become a farmers now, ऐसा हो रहा या है। तो ये तुम्हारा और एक न्यूज़ था यहाँ पे जो ना, सर सेंचुरी एक डाउट था, पोर्टफोलियोज। सर एक हाँ, ये डाउट था मैंने भी पढ़ा। हाँ निरुत, रिगार्डिंग जो आपने पहले एक न्यूज आर्टिकल दिखाया था ना, उसमें ये भारत बेंज मतलब डेमलर का जो बात हो रहा है वो भारत बेंज का, ये कि वो इट्स लाइक ए सेपरेट ब्रांड, बिकॉज आई डालमर इज रिमेम्बर। डिफरेंट, हाँ डालमर इज वो पूरा अलग ही है, भारत बेंज इज, है ना, वो जेवी है भारत और बेंज मर्सिडीज का। हाँ करेक्ट। हाँ डैमल अच्छा इज तो मतलब सेपरेट ही रहेगा वो सेपरेट अलग ही अलग। है, हाँ दे बोथ आर ओके ओके सेपरेट, यस यस यस। ओके 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 सर। Century Real Estate to double commercial portfolio at 50%. फॉर्चुनेटली ना मैं ये पुणे में भी देख रहा हूँ कि कमर्शियल रियल एस्टेट इज ग्रोइंग एट अ वेरी हाई पेस इन पुणे। बाकी की सिटीज का पता नहीं, अभी मैं यहाँ पे हूँ तो आई जस्ट लुकिंग अराउंड कि ना एक लेन है यहाँ पे नियर टू माय एरिया ओनली, वहाँ पे पूरा का नॉट हिंजेवाड़ी है, हिंजेवाड़ी भी नहीं, नॉट इवन इट इज द खराड़ी, ये एक आउन पार्ट है विच इज सेंटर ऑफ द सिटी, तो वहां पे आई एम सीइंग कि कितने सारे कमर्शियल प्रॉपर्टीज खुल रहे हैं। तो आई वाज जस्ट प्लानिंग, मेरे फैमिली वाले बोल रहे घर ले लो, तो आई वाज अरे घर से अच्छा मैं ये कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लो, बिकॉज द यील्ड ऑन कमर्शियल प्रॉपर्टी इज अराउंड 7%, 5 to 7 रेंटल यील्ड, जबकि तुम्हारा रियल एस्टेट पे ओनली 3%। Yes, sir. In Noida, same as increasing by the रियल एस्टेट अगर हम देखें यहाँ पे नोएडा में सर, जहाँ मैं रह रहा हूँ अभी 142, यहाँ पे जो भी कॉमर्शियल के जो भी एरिया है ना, बहुत बड़े बड़े भूटानी के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी न्यूली बिल्डअप हुए हैं और अभी हो रहे हैं सर। भूटानी के ये स्पेशली हो रहे हैं, और एक दो स्प्लेंडर और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी ओनर्स हैं वो बड़े बड़े बिल्डिंगें प्रिपेयर कर रहे हैं और आईटी पार्क बनाने का प्लान कर रहे हैं ये इस एरिया में सर। बहुत बड़ा हब बन रहा है सर ये। तो मैंने भी ये चीज नोटिस करी है यहाँ पे नोएडा में सर कि कॉमर्शियल के लिए ये लोग मतलब काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल रेसिडेंशियल होता है। चल रहा है, हाँ कि यस सर। रेसिडेंशियल का वो Sir, in सप्लाई हो रही Bangalore as well, it's growing, sir. सर पुणे में जो बालेवाड़ी और बानेर और ऑन जो आप बोल रहे हो ना, है। वहाँ पे ही बहुत सारे कॉमर्शियल है, जैसे गूगल के ऑफिस भी वहाँ पे। हाँ तो करेक्ट, वो पूरा बिल्डिंग स्मार्ट वर्क करके कोवर्किंग है वो हैंडल करता है। सर स्मार्ट वर्क के अंदर है सर, हम नहीं ले सकते वहाँ पे, ऐसा है।
नहीं नहीं, वो तो हो चुका है ना, मैं जो हो रहे उसकी बात कर रहा हूँ। सर वो भी टाइप में होता है, जैसे अमर बिल्डर्स करके एक बहुत बड़ा नाम है, और हम्म। मालपानी ग्रुप है, वो सब सर टाइप पहले से है, जैसा कि न्यू प्रोजेक्ट उन लोग का आता है तो पहले ही वो लोग स्मार्ट वर्क के साथ टाइप करके रखते हैं, तो करेक्ट हमको करेक्ट। एंट्री देना थोड़ा हार्ड हो जाता है। अच्छा हाँ, ऐसा है क्या? मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मैं गया नहीं देखने को। नहीं जानना। सर, पहले मैं इंटर्नशिप करी है ना अच्छा कोवर्किंग में, तो इसलिए मुझे पता है सब। अच्छा अच्छा। तो आज ये भी न्यूज़ था गाइस, ये पीएलआई सेक्टर का है ना, टेक्सटाइल सेक्टर। देयर इज लॉट ऑफ न्यूज़ कमिंग, जो हम सेक्टर्स फॉलो कर रहे हैं ना, उसके बहुत ज्यादा न्यूज़ आ रहे हैं। सिर्फ एफएमसीजी की नहीं आ रही है कि कनेक्ट द डॉट। अभी हम अभी रिटेल की बात कर रहे थे, स्पेंड कहाँ पे होगा ज्यादा से ज्यादा पैसा, तो टेक्सटाइल पे, तुम्हारे कपड़ों पे। तो यहाँ पे भी है ना, रिटेल सी मैन मेड फैब्रिक्स, अपरेल्स, टेक्सटाइल्स। तो आज तो आई थिंक बिजनेस लाइन में काफी कुछ था। दो आज मैंने आज पढ़ा, ये बिजनेस स्टैंडर्ड में कुछ नहीं था, इकोनॉमिक टाइम्स में भी ज्यादा कुछ था नहीं, बट बिजनेस लाइन में आज था। दिस इज वाई नाउ रिकमेंडेड टू रीड एटलीस्ट 3 to 4 पेपर्स, न्यूज पेपर्स अ डे। बिजनेस वो मैंने दिया है वैसे, उसमें बिजनेस लाइन, बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स, ये चार तो है। मिंट भी कर सकते हैं, बट मिंट में इधर उधर की चीजें बहुत होती है। यस सर, आज मिंट में भी ज्यादा कुछ नहीं था, मैंने भी देखा बिजनेस स्टैंडर्ड में एक न्यूज था, वो डाबर का जो मैंने आपको हाँ, भेजा है। बोलोगे वो और वही शुभम, बोलोगे वो न्यूज क्या था वो? yes sir, sure. Good morning everyone. What I have seen today in business standard, that in FMCG sector there is a Dabur who is aiming to double their digit growth, and targeting their CAGR of 10% in both revenue and profit by financial year of 2027 to 28. नहीं, If we सीएजीआर talk about कहाँ से कहाँ तक 10% बोला, तो कितने साल का? सर 2 to 3 years, बिकॉज सर अभी 2025 है, तो 2025 के बाद से ही वो मेजर करेंगे, आई थिंक सो। नहीं, और इनका जो क्या है, टारगेट। न्यूज क्या यस है कि दे आर प्लानिंग टू डबल देयर रेवेन्यू। सर, यस सर, डबल डबल देयर। डिजिट ग्रोथ, अच्छा, aiming डबल। they are aiming to double digit growth trajectory, targeting CAGR of 10% in both revenue and profit by financial year of 2027 to 2028. व्हाई? हाउ, सॉरी, हाउ आर uh, Sir, because if we look at the data points, in the financial year 25, revenue was 12,563 crore, which up with the percentage by 3.6%. And with quarter four, if we talk in revenue, it was 2,830 crore, which is 0.6% year on year, but increases by 2.1%. And sir, the reason behind this double digit growth is monsoon. Sir, everybody knows that in the monsoon, when the monsoon comes, illness and sir, fever and all these are coming with the same. So everybody want to switch from English medicine to Ayurvedic. So their Chavanpras and all these things are sales are increasing. And sir, if we talk about their products, like they are improving in premium upgrades such as low sugar beverages and contemporary personal care format, which will help to achieve this double digit growth, sir. And if we talk about international growth, there are 19% in quarter four, with 17% for financial year 25. And sir, what I see in the newspaper, that rural demand continues to outperform urban, with rural growth 4% points, with higher in quarter four. And sir, due to their launching premium variants such as serum, conditioner, uh, and benefit laid toothpaste, these are the products which comes in the premium, which are going to be launched soon, which help to the achieving the double digit growth, sir. Okay. So they are mostly focused towards to rural area. That's why Yes, they will. not rural but urban as well, but rural demands has declined, so they will focus on rural as well, because their aim is to double digit growth in upcoming 2 to 3 years, so they are going to be increase in rural as well. And they are opening outlets is also in rural areas. Rural areas, correct.
Yes. ये रूरल फोकस है ना, Sir, डाबर, इमामी आर ऑल रूरल फोकस कंपनीज. Yes, sir. Yes, sir. Segment wise, sir, they are focusing on basically, health and wellness segment mostly because of their increasing their Pudina, Hajmola, Shilajit, these things. Like mostly Yes, they're yes. getting For health and immunity boost up, they are going to be sell more and more about the Chyawanprash and the capsules of Shilajit and more other products they are like to be sell. Wellness products, yeah. Yes. hello, Healthcare, wellness, and premium personal care. The sir. most focus. Yes. Also, sir, they are also planning. So basically, the double-digit growth that they are saying, it's again they are saying that they do premiumization in the personal care segment. So again, here comes the premiumization we were talking about. That if they have to tap in the urban category, premiumization is trend is currently going on. So mostly they had to. So mostly they are saying that they do premiumization in the personal care segment and in the value-added foods. Value added foods, okay. And then value added foods again comes that millets, oats, सब वो premium. सब हाँ वही Sir, आता है फिर वापस. that's what I was highlighting when I yesterday went to DMart. Hmm. As compared to before, I have like I noticed this. That as compared to before, like I used to see normal, oats. Oats were there, right? Hmm. Only oats. Now it has started to be like they are packaging it like in a more premium way, and now they are also adding millets in it. And also like millets ka koi bhi matlab if there is some food related to millets, they have started highlighting it. There is something known as ragi rolls that Ragi rolls, many correct. of many of the companies have started. Just a second. There's some disturbance. Yeah. So they have also started selling that as well. And एक चीज बस ये बोलना था सर, जो योगा बार करके there is one company that has been acquired by ITC, right? उनका जो पैकेजिंग है ना, इट्स वेरी जेंजी और बहुत अच्छा पैकेजिंग है. और उनका ना बहुत मतलब दे हैव केम वेरी नाइसली इन दैट हेल्थ केयर सेगमेंट. मतलब कि लाइक प्रोटीन बार्स and हाँ, then correct. हाँ, ragis and all that. So they have started that thing. So ITC का वो पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा. उनकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है सर, yeah. प्रीमियम दिखती है. दिखते हैं, yes. Sir, हाँ, yeah, hello. Padmini. Yeah. Hi, this is my first class. Hmm. Actually, the way we talk about millets, like India has announced millets year. Hmm. Not India, actually, that this is the millets year or something. So Hmm. can we expect the same for makhana? Like in this budget, we have seen Yeah. a makhana board was formed, and also makhana prices have been on But surge after that. मखाना बनाने वाली लिस्टेड कंपनी नहीं है ना. How, but can we expect it in near future? How can I say that? Okay. So what happens, Padmini, we have to understand about the companies first. बनाना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बनाते हैं. मर्सिडीज इज मेकिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन देवर, मारुति इज नॉट मेकिंग. तो आगे जाके बनाएंगे नहीं बनाएंगे इसमें क्या है? There's nothing to do. We have to focus on the companies which we know about the company's products and all. So if you go to the first 4 sessions ना, वहाँ पे एक था that we understood about the companies कि कितना revenues कहाँ से आ रहा है. If the majority of the revenue is not coming from makhana, then what is the point of they growing in makhana? Okay, okay. Now also I was coming on to that point कि ये जो बोल रहे हैं millets and all, but it hardly contributes to Dabur's revenue. So it Okay. will, as it is, not impact the company. Okay, understood. Okay. अंडरस्टूड सर. Okay. सर आई हैड अ डाउट. सर आप ये बता सकते हो क्या, ये डबल डिजिट ग्रोथ मतलब द नंबर्स यू पिक, जैसे डबल डिजिट ग्रोथ स्टार्टिंग में या 11-12%, इट्स लाइक समथिंग, बनाना 10 plus. हाउ डू यू टेक इट? हाँ, एंड फॉर उस सर स्टार्टिंग 1 to 9 में भी यू हैव सेगमेंटेड इन वन ऑफ द ओल्ड वीडियोस. हाँ, कैसा होता है? डबल हाँ सर, वो डिजिट बता इज सकते हो क्या? 10, 11, हाँ सर. 12. डबल डिजिट इज 10, 11, 12. फिर लो टीन्स आता है. लो टीन्स इज 13, 14, 15. फिर हाई टीन्स आता है 16, 17, 18. ऐसा. ओके ओके ओके. इतना. सर सिंगल डिजिट में सिंगल डिजिट कैसा इज रहता 1, 2, 3, 4, 5. फिर हाई लो सिंगल डिजिट. है? ओके, सेम ना, 3 4 5. हाँ ओके 3, 4, 5. ओके हाँ, ओके सर, अंडरस्टूड ऐसा अंडरस्टूड. होता है. सिंगल डिजिट यूजुअली नहीं बात करते क्योंकि सिंगल डिजिट कोई बात ही नहीं करता. बिकॉज सिंगल डिजिट तो बोल देते कि हम 4% से ही ग्रो हो रहा है. ऐसा है. बट व्हेन इट कम डबल डिजिट, ओके तो डबल डिजिट इज ओके 10, 11, 12 ही होता है. क्योंकि 13 को वो दे टॉक अबाउट हाँ लो टीन्स.
got it, sir. Yeah, thank you. हाँ, तो शुभम, मैं बोल रहा था, ये तुमने जो लिखा है, यस लिखा सर। तो अच्छा है वैसे, बट ना मुझे यहाँ से ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि न्यूज चालू कहाँ पे हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है, या फिर लिंक क्या है इसमें। तुमने बोला करेक्ट, डाबर इज एमिंग टू ग्रो डबल डिजिट 10% बोथ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बाय FY 27 तक, 20 हम ऐसे लेते हैं 27-28, ठीक है। यस सर। अभी क्यों, अभी ये डेटा पॉइंट है ना, ये क्या करना है तुमको, ये अभी हम्म। नहीं चाहिए ना तुमको, ये लास्ट में डाल दो। अभी वाई इट इज इंक्रीजिंग, करेक्ट, रूरल डिमांड continues to outperform with rural growth 4 percentage point in Q4, ठीक है। तो ये 4% ऐसे नहीं लिखते, हमने बोला था ना 4 percentage point, यस सर। यस कुछ भी ऐसे 4% लिखना है विथ रूरल। सी तुमको बातचीत करनी है, तुमको वो बोला ना, जर्नलिस्ट नहीं बनना है तुमको, नहीं करना है सिर्फ वो, हम जैसे बात करते हैं वैसे ही लिखना है। क्यों बनने यस वाली है, वाई इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, बिकॉज रूरल डिमांड continues to outperform urban। एंड क्यों हो रहा है वो, वाई इज रूरल आउटपरफॉर्मिंग अर्बन, बिकॉज ऑफ मॉनसून। मानसून रिलेटेड। यस लिखा तो है इतने अच्छे से, तो बात करते हो फिर क्यों नहीं कर रहे हैं सर, क्यों हो रहा है, डिमांड इज कंटिन्यूस बिकॉज ऑफ, सो मानसून लेंट रिलायबल, तो ये हो गया ना, 3 लाइन तो हो गया ना ये तुम्हारा, यस सर। मतलब ये हेडिंग का मुझे 3 लाइन मिल गए। और परफॉर्म रूरल विद 4% हायर, अभी ऐसे नहीं लिखते क्या है, रूरल डिमांड कंटिन्यूस टू आउटपरफॉर्म इन अर्बन विथ रूरल ग्रोथ एट 4%, रूरल ग्रोथ एट 4% इन Q4। Why it is happening, because of अभी मानसून लेने, बिकॉज मानसून urban is rural is reviving because of increase in monsoon and the urban demand rebound for premium upgrades such as low sugar beverages and contemporary personal care formats। तो राधिका ने भी अभी वही बोला, पर उसने अलग से बोला, जो तुमने ऑलरेडी बोला था पर मुझे समझ में नहीं आया ना, उसको समझ में आया कि तुमने ऑलरेडी बोल चुके थे। उसने भी वही बोला चीज, क्योंकि मुझे भी नहीं समझा कि तुमने बोला था, अभी मैं जब तुम्हारा पढ़ा तब मुझे समझा कि तुमने तो ऑलरेडी लिखा है ना कि पर्सनल केयर में ग्रो हो रहा है, यस सर। सेड द सेम थिंग ना। हम्म। सो बट तुमने बोला ऑलरेडी, तुम्हारा न्यूज पहले था, वो उसने भी न्यूज लिखा था, बट वो उसने अच्छे से बताया, सबको बताया उसने कि सर ये पर्सनल केयर में प्रीमियम प्रोडक्ट्स ग्रोथ हो रहा है, इवन हर्ष ने भी बोला। तो तुम क्यों नहीं बोल रहे हो कि तुमने सब लिख चुके हैं ये सब। यस रूरल में क्यों ग्रोथ हो रहा है, तुमने बोला रूरल डिमांड कंटिन्यूस टू आउट परफॉर्म अर्बन, ठीक है। तो रूरल क्यों ग्रो हो रहा है, बिकॉज ऑफ मानसून। तो अर्बन क्यों ग्रो हो रहा है, अर्बन में रिबाउंड क्यों आया है, बिकॉज ऑफ प्रीमियम अपग्रेड्स। प्रीमियम अपग्रेड्स। उसमें यस क्या सर। था प्रीमियम, तो क्या हो रहा है प्रीमियम अपग्रेड्स में, कौन से प्रोडक्ट्स है, ये सब उसके प्रोडक्ट्स है, करेक्ट। प्रीमियम में यस क्या क्या है, एंड उसमें क्या हो रहा है, इनोवेशन प्रीमियम अचीविंग डबल डिजिट, तो ये भी हुआ है। अभी फिर प्रीमियम की बात करो ना, रूरल का हो गया ना, और कुछ है नहीं रूरल के बारे में, फिर प्रीमियम की बात करो, तो ये तुम्हारा हेडिंग हो गया नेक्स्ट। सो इनोवेशन प्रीमियम अचीविंग डबल डिजिट ग्रोथ बाय FY 27। तो क्या हो रहा है, लॉन्चिंग प्रीमियम वेरिएंट्स सच एज सीरम, कंडीशनर्स, benefit led toothpaste, gummies, etc. and targeting wellness products like gut health and immunity। उसमें हमको पता है च्यवनप्राश और 2-3 प्रोडक्ट के नाम चाहिए तो लिख सकते हो तुम। सर ये इतना डिटेल्ड आर्टिकल आया था क्या आज किसी न्यूज़पेपर में? हाँ हाँ, यस, उसमें था। दो न्यूज़पेपर में आए थे, एक नहीं नहीं, 2 में स्टैंडर्ड। आया था, मतलब लेकिन वो इतना डिटेल नहीं था, इसलिए मैं पूछ अरे रहा वो हूँ। उसने लिखा तो भी है, फिर तुमने लिखा भी इतना डिटेल है, बट वो जब पढ़ रहे हो तो समझ नहीं रहा कि तुमने डिटेल में लिखा है। नहीं, क्योंकि मैंने भी अच्छे पढ़ा, से मैंने भी यही आर्टिकल पढ़ा। लिखा अच्छे से है, लेकिन मैं सोच रहा था हाँ, मुझे नहीं मिला, नहीं इसलिए मुझे मैं नहीं भी नहीं, नहीं मिला कंफ्यूज था आ ये, गया। मैंने मुझे भी फिर नहीं मिला थोड़ा था। सा ना रिसर्च किया इस पे, अच्छा मतलब अच्छा, कि ओके। इसमें और क्या चीजें मैं डाल सकता हूँ जो मतलब न्यूज़पेपर में नहीं था। अंडरस्टूड न्यूज़पेपर में अंडरस्टूड। तो थोड़े थोड़े पॉइंट्स थे, वो विलेज से रिलेटेड थे कि विलेज इतना हो रहा है, इतना इंक्रीज कर रहा है एंड ऑल। हाँ तो फिर मैंने डेटा पॉइंट्स के लिए मैंने थोड़ा ना गूगल किया, इधर हाँ, उधर किया। नहीं मैंने भी ये पढ़ा, मुझे नहीं मिला यहाँ पे, ऐसा कुछ लिखा नहीं था इसमें। पर वो अभी तुमने लिखा इतने अच्छे से है, पर फिर बोलते टाइम फिर कोई और तुम्हारा क्रेडिट ले लेता है, ऐसा हो गया। प्रॉब्लम ये हुआ ना कि लाइक आज मेरा मतलब फर्स्ट डे है इसमें हाँ प्रेजेंट करने में, और दूसरा मतलब कल मैंने एक ईवी का लिखा था सर, मैंने आपको भेजा हाँ, भी था। देखा था, हाँ वो उसमें भी तो यही प्रॉब्लम था तुम्हारा, ठीक है। ये सर, तो प्रॉब्लम ये आ रही कि मुझे फॉर्मेट जो है ना, कि मतलब किसके बाद क्या यूज करना है, कौन सा डेटा पॉइंट किसके बाद करना है, वो ये मतलब खुद ही क्वेश्चन थोड़ा। पूछने का खुद को, मैं बोला ना तुम्हारा पूरा जो न्यूज आर्टिकल्स है वो हेडिंग से रिलेटेड होना चाहिए। जो हम्म हेडिंग हम्म है उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा क्यों, जो भी तुमने लिखा है क्यों हुआ, हम्म। 10% क्यों होने वाला है। यस यस।
तुम पहले लिख लो, चाहिए तो तुम एक आर्टिकल लिख लो, और जब तुम वापस मेरे को जब भेजते होगे तो ये लिखना ना कि अरे ये क्वेश्चन पूछेंगे सर कि क्यों हो रहा है, तो मेरे पास ये आंसर इसके वजह से हो रहा है। फिर अभी ये हो गया, और तो कुछ है नहीं, रूरल के बारे में कुछ लिखा नहीं है ना, तो किसके बारे में लिखा है? अभी अर्बन बारे के लिखा है, अर्बन में क्या हो रहा है, तो तुम्हारा दूसरा हेडिंग होगी सर अर्बन भी ग्रो होने वाला है, एंड वो क्यों ग्रो होने वाला है, तो भाई क्यों ग्रो होने वाला है तो ये है। फिर अभी ये क्या है, Q4 शेयर गेन अक्रॉस 20%, हेयर ऑयल इंक्रीजेस, तो ये सब फिर ये है, ये तुम्हारे डेटा पॉइंट्स है। फिर क्या है सर Q4 में क्या हुआ है, सर Q4 में ये हुआ है, ठीक है। अभी इसकी जरूरत नहीं, इसकी क्या जरूरत है, ये तो वैसे भी डेटा सबको पता ही है ना, तुम एनुअल रिपोर्ट देख लोगे तो मिल जाएगा सब डेटा। इसमें अलग क्या है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है? ये लिख सकते हो Q4 में प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्टिंग क्या हुआ था। अभी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इतना नहीं, Q4 में प्रॉफिटेबिलिटी क्यों बढ़ा था, प्रॉफिट लिखा है क्या? प्रॉफिट नहीं लिखा है, तो Q4 में प्रॉफिटेबिलिटी क्यों बढ़ा था? इट इज बिकॉज ऑफ बेनिफिटिंग इंटरनेशनल बिजनेस एंड डाइवर्सिफिकेशन। और इंटरनेशनल ग्रोथ कितना था, तो इंटरनेशनल ग्रोथ कितना था, 19% इन Q4 एंड ओवरऑल 17%, बस इतना ही था। ये तो सब डेटा पॉइंट्स है तुम्हारे, सबके सब डेटा पॉइंट्स। यस सर। ये भी देखो, अभी तुमने क्या Q4 में गेन हुआ है, तुम ये तो एक बेसिक था। फिर हमने क्या बोला सर प्रॉफिटेबिलिटी Q4 में बढ़ा था विद इंटरनेशनल बिजनेस हेल्पिंग डाइवर्सिफिकेशन। तो इंटरनेशनल बिजनेस कितना था, तो इंटरनेशनल में 19% ग्रोथ हुआ था, एंड ओवरऑल सिर्फ डेटा पॉइंट है, बस दैट्स इट। तुम्हारा मेजर न्यूज तो यही था कि क्या हो रहा है, इसी पे यस डेटा, सर। तो जो अच्छी अच्छी बात है, डेटा भी अच्छा ही है कि हमको पता चल रहा है कि इंटरनेशनल बिजनेस का ग्रो हो रहा है। नहीं था। अभी देखो तुम्हारा न्यूज और ये न्यूज देखो, फर्क फर्क कुछ नहीं, वही न्यूज मैंने सिर्फ इधर उधर चेंज की है चीजें। वही सर मेरे साथ प्रॉब्लम मैंने आपको बताया ना, लाइक कि मतलब मुझे पॉइंट्स किसके बाद कौन सा पॉइंट ऐड ऑन करना था उसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, बट आई विल इम्प्रूव इट हाँ, बाय खुद को टुमारो क्वेश्चन एज वेल। पूछो, खुद को मतलब ये अज्यूम करो कि हाँ इसके बाद क्या क्वेश्चन, तुम लोग ये अज्यूम करो कि तुमने जब ये लिखा है, एक पॉइंट लिखा है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछूंगा, हम्म। वो समझेगा तो तुम्हें ऑटोमेटिकली तुमको वो सेंस आ जाएगा कि इसके बाद क्या लिखना है। हमेशा क्यों क्वेश्चन होना है, क्यों क्या क्यों होगा, जो भी लिखा है सेकंड क्वेश्चन क्यों, वो हमेशा सिंक में होना चाहिए, और जो सिंक में नहीं है वो नीचे लिख दो, जिसका कुछ भी यस सिंक आ नहीं रहा है, किसी का कुछ लिंक ही नहीं हो रहा है इधर ऊपर से, जो ये लिखा है इसमें है क्या, ये Q4 का कुछ है इसमें, कुछ लिखा है नहीं है तो नीचे लिख दो Q4 में क्या क्या हुआ था सर, एक डेटा पॉइंट्स था। तो ऐसे बात करते हुए भी ऐसा होता कि सर थोड़ा बहुत डेटा पॉइंट्स था, क्या था कि सर Q4 में उनका गेन हुआ था अक्रॉस 90%, उनके प्रोडक्ट लाइन से हेयर ऑयल से हुआ था, विच इंक्रीज। अभी ये वन बेसिस इतना नहीं, ये 196 नहीं लिखना होता है गाइस व्हेन यू टॉक अबाउट ओनली स्पेसिफिक ग्रोथ। अगर तुम कंपेयर करते हो ग्रोथ को तो ही ये परसेंट लिखना है। अभी किससे 196 बढ़ा है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ग्रोथ था 4% का 5% हो गया, मतलब 100 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। ये तो तुम कंपेयर कर रहे हो। अभी तुम बता रहे हो ना कि सर हेयर ऑयल इंक्रीजेस बाय, अभी हम पेट्रोल प्राइस ऐसे बोलते हैं 100 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ, इंक्रीजेस बाय 1% ही होता है। अगर तुमने पहले पेट्रोल को बोला है कि पेट्रोल सर 5% से ग्रो हुआ था, इस साल 10% से हुआ है, तो हम बोलेंगे 500 बेसिस पॉइंट से ग्रो हुआ है, समझे। अभी तो हम कुछ है नहीं ना, तुम्हारे पास बैकअप कुछ नहीं यस ना, सर, यस सर। ऑयल का तो तो। जब जब हमारे पास कंपैरिजन के लिए मतलब पॉइंट्स होंगे तभी हम दूसरा नेक्स्ट का जो पॉइंट होगा वो ऐड ऑन करेंगे। वो जैसे आड़ अभी मैंने ये इंक्रीजेज बाय 196 बीपीएस डाला है बेसिक हाँ पॉइंट, तो ये अगर मेरे पास प्रीवियस का होता तो मैं इसे कंपेयर करके डालता तो ज्यादा बेटर होता। करेक्ट, क्योंकि हम जब वो रेपो रेट होता है ना, रेपो रेट हम बोलते हैं कि इंक्रीजेस 10 बेसिस पॉइंट, बट कहाँ से 10 बेसिस पॉइंट वो हमको पता होता है हाँ रेपो रेट क्या है। हाँ, ओके 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 चार ओके। परसेंट था उधर से 10 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। अभी इधर थोड़ी पता है हमको क्या है कि हेयर ऑयल का पहले कितना था, मतलब कि पहले सर 4% से ग्रो हुआ, अभी 5%, तो ऐसा नहीं बोलते, फिर अभी 100 बेसिस पॉइंट से ग्रो हुआ। ओके ठीक ओके है। ओके। तो सर इसे मैं हटा के मतलब ऐसे रख दूं, मतलब उसे जो बेसिक 196 बीपीएस है और 261 बीपीएस है उसे एडिट करके हटा दूं। हाँ हेयर ऑयल इंक्रीजेस 2%, ये तो 2 और 196 नहीं लिखता था, 2% इंक्रीज, और ये कितना हुआ था 2.6% इंक्रीज। ओके ओके। और ये सर ये 2 पॉइंट ये टू मार्केट, ये क्या शेयर है क्या, बट ये क्या है, ये मार्केट शेयर गेन्स है क्या, क्या है लिखा है बट ये Q4 शेयर गेन्स तो बराबर है फिर, अगर शेयर है तो सर शेयर गेन है सर ये। मतलब मार्केट शेयर गेन है ये।
नहीं हाँ वो मार्केट शेयर गेन हाँ है मार्केट शेयर गेन सर। बट इट्स मार्केट लाइक क्या 90% प्रोडक्ट लाइन में हम लोग ने थोड़ा एडिशन किया है मार्केट शेयर। तो फिर बराबर है, मार्केट शेयर गेन तो फिर बराबर है। तो कितना था पहले वो तो लिखो, कितना था 190 से बड़ा था कितना पहले, यस। या फिर कितना हो गया है, वॉट एवर इट इज, 190 से बढ़ के इतना हो गया है, एक कोई चीज लिखते हैं कि मार्केट शेयर हम्म। गेन हुआ है इनके, ठीक है। ठीक है सर, मैं इसे ना एडिट करके वो प्रीवियस का जो था उसको ऐड ऑन कर लूंगा, उसके बाद फिर मैं इसे लिंक्डइन पे अपलोड करूंगा। हाँ ये बराबर है, फिर अभी 186 बराबर है। मुझे लगा तुम ग्रोथ की बात कर रहे हो, तो ये नो नो शेयर सर, ये शेयर था सर, ये कितना शेयर। हो गया वो लिखना होता है, 196 बिजनेस से कितना हो गया। ओके। Sir, uh, हाँ, sir, I had a news on auto sector, sir. यू डिडंट सेंड मी। Sir, I sent it to you yesterday. I didn't send the voice note, sir. Thought I'll tell you here in the meeting. ओके। Yeah, sir. The news is basically about EVs, sir. Tata Motors, they're under pressure as EV arrivals accelerate. Tata sold like 12,325 EV units, accounting for 45% of the total passenger EV sales. This marks a sharp decline from its 57% market share in Feb 22. They sold like 19,000 units in Feb 22, sir, and total EV sales was 33,000. And in June, they sold like 12,000, from 19,000 to 12,000. And total EV sales was 27,000. This is a decline from 57% to 45%, sir. Basically, the reason is Mahindra and MG and BYD, they're increasing their unit sales, sir. That is the news. And I had another news on EV sales, sir. Like passenger vehicles, it increased by 43.6% year on year. And there's a drop in electric two-wheelers from of 21.5%, sir. Why you? I don't want the data points. No, I don't even remember now what you told. Ask the last 29 candidates, students, what they understood about your news. Sir, passenger vehicles are increasing, sir, from 9,700 First you said units. EV is increasing, correct? Sir, first I spoke about Tata, sir. Their market share actually declined from 57% to 45%. Why? Because don't say Mahindra, 55 MG, to and BYD, 45. they're selling more units, You sir. don't That's say why. 45 to 55. You talk in basis point now. Okay, sir. Just now we said, na, share when you talk about in basis point. Okay, sir. How much basis point it declined? So 700 basis point decline, sir. So that's a big news. Na? So that should be a highlighted point. Na? Sir, the market share of Tata Motors declined 700 basis point. Yes, sir. Yes. So that that will attract that will attract me. Na? Okay, what happened? 700 basis point. When you say 45 became 55, I don't even in Okay. that condition to hear your what are you talking? Because see, Okay. we are sitting online and Okay. 100 things are going in everyone's mind. Okay, Yes, if you sir. don't stress on it that something you want to tell, you just keep on reading it, then no one is interested in reading. No one is interested in listening, because listening Okay, sir. skills are very poor. Everyone, that is human nature. And why, the question is, why would I listen to you Yes, sir. like that? So you tell me something which is no, so you are forced someone to listen to it. So Tata Motors market share decline 700 basis points. Yes. Yeah. To decline to how much? So 57% market share to 45%, sir. EV sales only. I'm talking about EV sales. 57 to 45. Yes, sir. From Feb 22 to June 25. So that is not 100 that is not 700 basis point. That is how much? 57 to 45. Yeah, yes, sir. More than that, sir. But you have not written it in proper way. The way you have. Sir, I've just written the percentage, sir, like how much it has declined. So, But the way you have written this news, where is the heading? okay, Where is the sir. paragraph? Where is the link? Data AI can give me a much better data than you in a proper way. Okay, sir. Sir, and EV sales also, passenger vehicles, it has increased, sir, from 9,000 units to 13,000. And two-wheelers, EV sales have declined, Why sir. it has increased? Sir, product expansion and variety, and improved charging infrastructure. The expansion of this fast charging stations in metro and tier 1 cities, that has reduced the range anxiety, sir. And corporate and fleet adoption as well. Like Blue Smart, Uber, and Amazon, they're electrifying their fleets. So out of these That is, passenger vehicles, which yeah. which car has increased? Which Uh, company have increased? Company's products?
Sir, most probably I think it's Mahindra, sir. So because of In BE6 and MG XEV, MG Hector is not also think. interested. MG Hector. You have just written how much percent is the increase? 4,000, good or bad? 12,000 is good or bad? I think 12,000 is good. Okay, sir. सर MG Hector का 2020 में उनका सिर्फ 1% ही ईवी में था और अभी वो जस्ट 25 में वो 30% तक ग्रो कर चुके हैं 5 साल में। करेक्ट, हाँ। और सेम अच्छा। एज महिंद्रा ने भी कैप्चर किया है कि वो 22% उन्होंने ग्रो किया है। सिर्फ उन्होंने 2 प्रोडक्ट से ज्यादा ग्रो किया, जैसे V6 और E9 बोल के उनके जो E9, नए स्पोर्ट वेरिएंट आए हैं उन्होंने उसमें हाँ, ज्यादा ग्रो किया। करेक्ट। और काफी ऊपर दिक्कत से है। अभी और टाटा का शेयर ड्रॉप हो सकता है क्योंकि अभी मारुति सुजुकी कमिंग ईवी में आ रहा है और होंडा भी ईवी में आ रहा है, तो आ रहा है, यस। थोड़ा ट्रबल बढ़ सकता है इसका टाटा मोटर का। करेक्ट, करेक्ट। सर मैंने भी सेम इसी पे न्यूज़ भेजा था। थिंक इंफॉर्मेशन थोड़ा सा मतलब न्यूज़पेपर से डायरेक्ट लिया है। कैन यू चेक सर अनिरुद्ध? या have sent me. यस्टरडे सेल्फ या आज क्यों नहीं भेजा? सर आज का सर ये इन्फॉर्मेशन सब ऑलमोस्ट 4 न्यूज़पेपर गए थे, रीड किया था। क्या? मैंने वो MG का सर ना वो कार देखा इलेक्ट्रिक कार. It's like विंस्टर। हाँ Winster. It's really good and it looks premium also. Very हाँ, nice it looks car. premium. दिखते हैं, Yeah. काफी दिखते हैं रास्ते पे। Yes, yes. They have started like I have started looking them more frequent as compared to before. ये जो क्वेश्चन है, सी टाटा इज डिक्लाइनिंग इन ईवी सेल्स, इंक्रीजिंग। टाटा मोटर्स का हमने देखा ना, पूरे पैसेंजर व्हीकल्स के 5% कम्स फ्रॉम ईवी। 5 भी नहीं है, कल ही था ना न्यूज़पेपर में। 5 परसों के दिन था, 4%। सो दिस न्यूज हैज नथिंग टू डू, ये सिर्फ जनरल नॉलेज है। क्या करोगे ये न्यूज का? ईवी इज नॉट इन इंडिया, ईवी इज ओनली 2 व्हीलर्स, दैट हैज बीन अ मेजर शेयर। बाकी 4 व्हीलर ईवी का इतना पढ़ के करोगे क्या? महिंद्रा के हार्डली 4 गाड़ियां जो ईवी के बनाते हो। So overall sector is already Yes, sir. subdued. So what is EV increasing? Then other cars are already decreasing. वो तो क्या फायदा ईवी इंक्रीज, मतलब इट इज नॉट इवन पॉइंट टू टॉक अबाउट इट। ईवी ईवी इफ यू टॉक अबाउट इन नंबर फाइनेंस टर्म्स में बात करोगे तो ईवी में देयर इज नथिंग व्हिच इज कमिंग अप। तुमको क्या लगता है इंडिया विल अडॉप्ट टू ईवी? इधर लोगों के घर पे लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं नहीं है, है। इधर लाइट नहीं है लोगों के घर पे। तो ईवी इज टाइप ऑफ लग्जरी जो पीपल आर बाइंग इट जस्ट फॉर फन, या फिर फ्लीट सेगमेंट में ग्रो हो रहा है, दैट्स इट। Same like housing, sir. Like luxury is increasing here also. EV like first car तो नहीं है, second third ले रहा है, वही सेकंड EV थर्ड, दिख रही है. हाँ सेकंड थर्ड होगी तुम्हारी, फर्स्ट कार तो इट विल नेवर बी एन ईवी। एंड वो भी ईवी में कुछ ठीक है, हार्डली देयर इज अ बेस व्हिच इज कमिंग। महिंद्रा इज सेलिंग, तुम जाओ कभी कि मेरे को गाड़ी लेनी है, यू विल नेवर बाय एन ईवी। इवन आई एम टॉकिंग अबाउट मेट्रो सिटीज, फॉरगेट अबाउट रूरल एरियाज। तो वो इट इज नथिंग टू टॉक अबाउट ना, कि क्या बोलोगे अभी, क्या करोगे इसका? होंडा इज कमिंग अप विद एन ईवी, एक प्रोडक्ट है उसके इतने हजार, कितना बेचती है होंडा? 50,000 व्हीकल बेचते, 50,000 में से 5% भी उसका ईवी से नहीं आता है। Then हाँ what is सर, the point of they have discussing just started, they have just entered the segment. enter the segment? So what is the Yeah. point of discussing about all this? हाँ, 2 व्हीलर्स की बात करो तो ठीक है, 2 व्हीलर्स में तो काफी ग्रोथ हो रहा है। 2 व्हीलर तो इट इज दैट इवन द फ्लीट सेगमेंट इज ग्रोइंग, द ओला उबर रैपिडो सेगमेंट वो ग्रो हो रहा है, क्विक कॉमर्स ग्रो हो रहा है। एंड देन योर सेकंड थिंग इज हम पर्सनल व्हीकल्स में भी हम ईवीज ले रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली स्कूटर लेके हम लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाते। स्कूटर लेके हम सिटी में ही घूमते हैं, सिटी का छोड़ो एरिया में ही घूमते हैं हम। वी डोंट इवन गो फॉर लॉन्ग ड्राइव विद स्कूटर्स। तो ऑब्वियसली स्कूटर्स इज डूइंग वेल। इफ यू वांट टू टॉक अबाउट ईवी 2 व्हीलर्स तो मतलब डिस्कस करना है, for general knowledge it is fine, but when to discuss something it is only about a EV 2 व्हीलर्स, उसमें Sir, क्या? but 2 wheelers they have declined, sir. Like, हाँ, so that is the main yeah. thing, 2 व्हीलर्स have declined, so that's a concerning part. Yes, So sir. it was like in the news it was mentioned first half of the 2025 was they showed a decline. Later it was caught up compared to last year. Yeah. Anirudh, you should not write this, you should have a paragraph, story बनाना है, पेपर नहीं पढ़ना है। Okay, sir. Not a presentation, you have to write it as a story. Sure. Why it has increased, what is the reason it has increased. सर वो आई थिंक इसके नीचे मैंने रीजन फिर वो अलग से मैंने मेंशन किया था। पैराग्राफ में लिखना है वो, पैराग्राफ करेक्ट, मैं कर दूंगा। यस सर, फॉर नेक्स्ट टाइम। यप। Okay guys, good discussion again. It was
healthy discussion on FMCG, again on auto, and whatever things we are discussing is coming again in the newspaper about spending money, travel, tourism. तो वो ना stocks track करो, start Sir, stack. full hotel stocks are up today. Like whole hotel are 2% up every hotel. मतलब वही वो सेक्टर स्पेसिफिक रैली हो रहा है अभी. उस दिन एफएमसीजी ऊपर था. नाउ ऑटो वाज अप, सॉरी योर टूरिज्म इज अप. उस दिन एफएमसीजी में भी स्पेसिफिकली प्रीमियम प्रोडक्ट्स वर अप. उस दिन नाइका भी आता है उसमें, एफएमसीजी में ही आता है वो, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में. ओके, सो ये when you track all those companies ना, इतने सारे ट्रैक करोगे, and when you talk something about this in the interviews, so it might be any interviews. Equity नहीं है, see, it is not only equity. You can also go to private, you can also go to FPA roles, you can also go to financial analyst roles. Now it depends where you get the highest salary, because equity में probably when you go, वो लोग तुम्हारा degrees भी at times पूछते हैं for higher salaries. अगर तुमको 10-15 लाख चाहिए तो obviously they will ask you for an MBA degree, and that too from a good college. But if you're not from a good college, या ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि रोल्स नहीं मिलते हैं. रोल्स है, रोल्स आर अवेलेबल, बट यू हैव टू प्रूव. नाउ ये सब तुमने जो बोले है, यू हैव टू राइट रिपोर्ट्स ऑन इट. मॉडल्स बनाना है तुमको. मैंने बोला है वो ऑटो नंबर्स है, तो ऑटो नंबर्स वो अपडेट करो. वो मार्केट ट्रैकर भी मैंने बोला था एक बनाने को वन ऑफ द वीडियोस में. नो वन इज डूइंग इट ऑन अ डेली बेसिस कि रोज मार्केट में क्या हुआ है. हार्डली 1-2 पीपल सेंड मी कि सर मार्केट में क्या हुआ है. तो तुमको वो पता होना चाहिए ना क्या है. तो शो यू सब वीडियोस है यहाँ पे. और यार जो 14 जून के इसमें है, सी दिस 1, 2, 3, 4 आर नॉट रिलेटेड. ये सब एक एक पॉइंट्स जस्ट वी हैड डन एज इंट्रोडक्शन कि इसमें कंपनी प्रोफाइल कैसे लिखते हैं, इसमें फिर मार्केट ट्रैकर कैसे बनाते हैं. तो मेजरली 3 and 4 भी इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू रीड इट, कि कंपनी के बारे में जस्ट अंडरस्टैंड इट. तो ये भी मैंने बोला था बनाने को कि कंपनी के बारे में मुझे बना के दो, तो दैट नो कितने कंपनीज के बारे में तुमको पता है, कंपनी के प्रोडक्ट्स बेसिक बोला था रफ में बना के दो. ओनली राधिका हैज डन इट, राधिका एंड सेजल, बाकी किसी ने नहीं किया है. सर मैं अभी आज थर्ड लेक्चर पे हूँ, क्योंकि मैं बहुत लेट ज्वाइन किया था, तो अभी ये सारे लेक्चर रिकवर कर रहा हूँ अभी वर्क यू हैव करके. टाइम तो ना. अभी अभी तो फिलहाल मैंने कुछ सिखाया नहीं था, फाइनेंशियल ये मॉडल में ज्यादा कुछ सिखाया नहीं था. तो वही अभी आज थर्ड लेक्चर पे हूँ सर. एज एज सुन एज पॉसिबल आई विल कंप्लीट, आई विल मेक श्योर टू डिलीवर यू. So you have 2 weeks, 2 to 3 weeks में if you do all the task, मतलब अंडरस्टैंड, तो भी ना तुम जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो. कि कल कुछ ने बोला कि अरे तुम्हारे स्टूडेंट ने क्या किया, बोला, सर उसको कंपनी के बारे में पता है, वो ना न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसको थोड़ा बहुत पता है मार्केट में क्या चल रहा है, तो वो यस सर, यस सर. स्टार्ट के लिए बस हो जाता है. ऐसा है. Sir, one thing I wanted to ask, like right now annual report seasons are out. So how can we read and deliver like reports उस पे कैसे बना सकते हैं? कोई नहीं, सेक्शन पहले तो से क्या तुमको है? कंपनी समझना है. हाँ, एनुअल वो रिपोर्ट तो तो मैं बाद में समझ आएगा. गया. ये कंपनी ठीक, समझने को ओके. तुमको पहले वो नंबर्स पता होने चाहिए, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट में भी पढ़ना क्या है. तुम सिर्फ एमडीए वही पढ़ोगे. वही क्वेश्चन था सर, पढ़ना क्या, वही क्वेश्चन वही. था पूछना तो था. उसके लिए कंपनी स्पेसिफिक एक बार समझना, तो तुमको समझना है कि कौन से सेगमेंट में क्या पढ़ना है. एंड एनुअल रिपोर्ट हम्म. यूजुअली 1 साल का नहीं होता है, 5 साल का रीड होता है. यू रीड फॉर ओके 5 years. ओके 1 साल में तुमको ओके. कुछ भी नहीं समझेगा क्या कर रही है कंपनी. हम्म. तो इसके लिए पहले वो नंबर पंचिंग होता है. यू पंच द नंबर्स, फिर तुम ग्रोथ देखते हो कि ग्रोथ क्या हुआ है, एंड फिर ग्रोथ से अंडरस्टैंड कर रहे हो कि अरे कौन सा एनुअल रिपोर्ट पढ़ना चाहिए, ये ईयर में सच में कुछ ग्रोथ हुआ था, तो क्या रीजन की वजह से ग्रोथ हुआ था. ऐसा, तभी वो एनुअल रिपोर्ट का एनालिसिस काम में आएगा. ओके. सर ये एक व्हाट्सएप ग्रुप पे देखा था, टास्क 1 फॉर वीक 7 to 11 जुलाई. तो वर्कशॉप के अपना पूरे वो ऑटोमोबाइल में पूरे वीडियोस देखकर ही एक्सेल बनाना है वो. हाँ कल पूरा मतलब अगर ये वाला, ये जो वर्कशॉप है यहाँ पे 4 वीडियोज है इसके. नहीं, क्योंकि अगर कुछ तो एक वीक में तुमने किया क्या, मैं तुमको पूछूं लास्ट मंडे से कर क्या रहे हो तुम. ओके. कि एवरीडे, मेरा मेरा पर्पस है कि एवरीडे यू अपडेट समथिंग ऑन योर सीवी. 3 महीने हैं तो हम 3 महीने इज लाइक 4 weeks, 12 वीक होते हैं. 12 चीजें तुमने अपडेट की क्या तुम्हारे सीवी पे. 12 नहीं तो तुमने 10 चीजें तो अपडेट की, या 6 चीजें तो अपडेट की. पर्पस तो वही है सीवी बना, क्योंकि मेरे जब रेफरेंसेस आएंगे तो वो यही पूछेंगे तुम्हारे स्टूडेंट ने किया क्या इतने 3 महीने, एंड विथ प्रूफ. सिर्फ मैंने पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ा, मैंने क्या कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़े, उसका कोई प्रूफ नहीं है. इफ यू डोंट हैव एनी प्रूफ ऑफ रीडिंग इट, तो इट इज अज्यूम टू बी तुमने कुछ नहीं किया है. ओके.
ओके Okay. Okay, guys. Okay. Sir, I want to share something. No. As we were talking about EVs lastly, so I work in sustainability profile. तो Okay. here when we are researching मतलब हम लोगों का जो research होता है it mainly based on like positive things like green buildings and EVs only. So sometimes we see that जो भी companies होती है that we were talking कि four wheeler EVs जो है वो कम ही grow हो रही है क्योंकि वो companies अपना CSR को align करने के लिए या ये regulations जो भी हैं उनको align करने के लिए ही निकालती हैं nobody really purchases them. But टू व्हीलर वाला जो ईवी है वो मेनली क्यों सोल्ड हो रहा है बिकॉज जो इन्वेस्टर्स होते हैं बड़े बड़े लाइक HNIs होते हैं बैंक्स इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं दे मेनली उनको अपना रेगुलेशन जब उनको रेगुलेशन से अलाइन होना रहता है तो दे इन्वेस्ट इन दीज ईवीज जैसे कि अभी आपने देखा होगा रोड्स पर ग्रीन कलर का एक जिप करके आता है जिप का बाइक आता है एक करेक्ट. तो उसमें इन्वेस्टर जो एक इन्वेस्टमेंट फंड है और इन्वेस्टर है बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है उन्होंने कर रखा है क्योंकि दे हैव टू अलाइन टू देयर रेगुलेशन CSRs, तो correct. इसलिए ही जो टू व्हीलर्स का ईवी है उसका डिमांड इज गोइंग हाई तो आई प्रोबेबली फील कि यहाँ पर ये वाला कनेक्शन है ये तो ठीक है, हाँ वो तो एक है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक मैक्रो, क्योंकि यू कैनॉट प्रूव यस इट ना, नंबर से प्रूव नहीं कर हाँ पाओ हाँ तुम. ठीक है, हो रहा है, बट हाउ विल यू प्रूव इट कि कितने लिए है, कितने इनमें पैसा डाला है. डेटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है. तो व्हाट वी हैव ओके इज ई कॉमर्स का ग्रोथ हो रहा है. ई कॉमर्स में चीजें लगा, अभी वो लोग भी ले रहे तो किसी चीज के लिए ले रहे ना, ये थोड़ी कि लेके सिर्फ रखने वाले यार दे, यस क्योंकि उनका कोई होगा, उनका कोई बिजनेस होगा जहाँ पे वो लग रहा होगा, लॉजिस्टिक होगा जहाँ पे लग रहा होगा. बट कैन वी प्रूव इट एक बिहेवियर को देख के मार्केट बिहेवियर को देख के कैन वी प्रूव आवर पॉइंट अगर नहीं, बट वो इंटरव्यू में CSR नहीं एक्टिविटी कर रहा है तो क्यों कर रहा है, हाँ क्यों कर रहा है वो? दे हैव टू अलाइन विद सम रेगुलेशन तो कुछ भी बाय कर जैसे लेंगे. कुछ भी बाय नहीं कर लेंगे दे हैव टू इन्वेस्ट इन सम ईवी थिंग क्यों? जिससे वाई EV? हाँ, तो उससे क्या होगा? उससे इन्वेस्ट करके क्या एमिशन करेंगे? एग्जाम्पल, यू आर HNI इन्वेस्टर, ठीक है, यस तुमने EV बाय कर लिया, ठीक है, अभी क्या करोगे उसका? CSR के लिए तुमने बाय किया, तुम्हारी कंपनी है, तुमने बाय करते, क्या करोगे? HNIs ईवी बाय नहीं करते हैं ईवी वाले कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं उनको इन्वेस्टमेंट देते हैं ऐसा आई एम सेइंग तो वेर इज दैट इन्वेस्टमेंट? तो EV वाले क्या कर रहे हैं, किसको बेच रहे हैं? वो ईवीज को ही मेनली या तो मैन्युफैक्चर करेंगे और उनको ही चलाएंगे बिकॉज दे वांट टू रिड्यूस द एमिशन ऐसा हाँ, तो वो है ना, तो ऑब्वियसली वेर इट इज यूज इन क्विक कॉमर्स, के क्विक कॉमर्स में या यूज हो रहा है, इसके लिए वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. देयर इज अ सप्लाई वैल्यू चेन ना. यस तो ये को मैं तो सोलर में इन्वेस्ट करो, फिर ग्रीन एनर्जी करना है तो सोलर हाँ में हाँ करना है, तो EVs में क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज अ ग्रोथ. तो ग्रोथ कहाँ से आ हम्म रहा है? तो ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम क्विक कॉमर्स, या ओके हम भी जो ले रहे हैं, क्विक हम्म कॉमर्स हो गया, देयर आर मेनी वेरियस थिंग्स. ओके ओके. थैंक यू Hello. Sir, हाँ, I got call from Arihant Capital. अच्छा आया कॉल? Yes, क्या yes. बोले? They said that I have to send the reports. हाँ So they told that you have given the CV and things like that. हाँ हाँ हाँ. And they told that so actually it was from बाला Bala. Yes, Bala sir only. हाँ. He told me that he asked where do you live and what are you tracking right now. I said that I am tracking FMCG and auto right now. So he told that have you made any of the financial models or like reports or things like that. I said that I have made it I have made reports in the previous organization where I was working as an intern. And here in this organization right now, I have made models for market tracking and monthly auto numbers like that. So he told, okay, do you know financial modeling in a proper way? I said that I'm not like completely fluent in it, but I would I'm say, learning. बोला yeah, I'm I'm learning under learning. Rishabh sir. Yeah, हाँ. under Rishabh sir. So I said that Rishabh sir has told us that if like you have to learn financial modeling, it would take hardly like 10 days or 15 days or something like that. So don't worry about that. So I said I would be fluent enough to act on it. No worries. So he said, okay, I will schedule your interview. Okay. Just send me your reports. So sir, I have made reports. I'll first send it to you. You just see and like tell me what should I improve in that. ठीक है. And in the market tracker and the auto numbers, Hmm. okay,
उसके अंदर तो अभी मंथली वाला ही प्रॉपर तरीके से डाला है, बाकी तो मैंने एक रफ शीट ऐसी बस बनाई थी, ठीक है, लेकिन मैं वो मेन Sir, only press release is there ना, so that is there like क्या क्या मैं बोल रहा हूँ सर एक प्रेस सेकंड रिलीज मतलब ओनली एक सेकंड डाटा लेट वी हर्ष हैव ना. हर्ष कंप्लीट लेट हर्ष कंप्लीट एक सेकंड सॉरी सॉरी. हाँ क्या बोल रहे सो मतलब कि आई एम थिंकिंग दैट ऑल द रिपोर्ट्स दैट आई हैव मेड, लाइक मैंने शक्ति पंप पे बनाया है, पावर सेक्टर पे बनाया है, और मतलब कि प्रीवियसली जब मैं इंटर्नशिप पे अप्लाई कर रहा था तो ये सब जगह पे मैंने बनाया, तो जो अच्छे दिखने वाले थोड़े से रिपोर्ट है, बट दे आर नॉट लाइक प्रॉपर रिपोर्ट्स, व्हाट शुड आई डू? दे आर वेरी सिंपल जस्ट एक पॉइंट्स। वो भेजो एंड ना मुझे तुम्हारा जो ऑटो नंबर हमने बनाया ना हम्म एक समरी लिखना सिर्फ कि वो उसमें समरी लिख के भेजना उनको कि नंबर्स तो किया है नंबर्स का किया क्या तुमने तो समरी बनाया ओके ओके ओके। तो वो जो मतलब कि मैंने जो वो मार्च के नंबर्स के किए हैं, ठीक है, उसको ही बस मैं काम करता हूँ आगे करके ना जून के नंबर्स, लेकिन उनका मॉडल वाइज डेटा नहीं आया होगा तो मैं उनका प्रेस रिलीज प्रेस प्रेस, रिलीज ठीक है, अब ये ना मतलब लेटेस्ट ही है यस ना सर, वो अभी वही तक मैं आया नहीं वही क्वेश्चन करा था सर कि प्रेस रिलीज के नंबर आ गए, मॉडल वाइज नहीं आया, वही मैं बोल मॉडल तो वाइज तो सी मॉडल वाइज इज हमको मिल रहा है विच इज नॉट कंपनी इज नॉट प्रोवाइडिंग ठीक है ये हमको बाहर से मिल रहा है तो तुम्हारा उस पर फोकस नहीं होना चाहिए तुम्हारा कंपनी जो देता है उस पर फोकस कि ये तो फर्स्ट डे को याद आता ना तो हाँ सर, तुम उससे वो क्या तो डन है मेरा, प्रेस हाँ रिलीज तो फर्स्ट को आया, सेकंड को अपडेटेड हो गया, बट वही है कि मॉडल वाइज नहीं आया तो वो पूरा सिनेरियो बनता नहीं है, लाइक हाउ तो वी दो एनालिसिस एंड समरी तो शीट मैंने वी आर बोला ना प्रिपेयरिंग, कि दो तो सब दो पूरा चीजें वो करनी है कवर ना नहीं हो तो मैंने बोला था ना उसमें रहा. कि ओके. दो चीजें हैं एक प्रेस रिलीज का डेटा है एक और एक मॉडल वाइज है हाँ सर, प्रेस दोनों रिलीज है, में भी तो हाँ. आधी चीजें समझते ना कि फोर व्हीलर्स हाँ कितने बिके आधा टू व्हीलर्स उतना कितने तो बिके समझ में आ गया सर, सो उसका सर समरी शीट हो गया मुझे सर, एटी मुझे वो इसका मॉडल वाइज नहीं गाइडेंस, हुआ इसलिए मैं अपडेट नहीं दे पा रहा था, इसलिए मैं वो. नहीं नहीं मॉडल वाइज तो बाद में इसकी जरूरत है ना अभी के लिए तो मुझे मॉडल इसका जब फिर आएगा तभी सर आएगा इसके अंदर है ना गाइडेंस चाहिए रहेगा कि मतलब मैं इसका जो प्रेस रिलीजेस है ना हम्म उसका मैं फटाक से वो करता हूँ, मतलब कि नंबर्स पंच करके और मॉडल वाइज क्या निकालना है, लेकिन ना हाँ मैं उसको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पा रहा हूँ अभी तक, तो मेरे को वो करना है वापस से, लेकिन आप मुझे बताइएगा, मैं आपको भेजता हूँ जो भी है, यू गाइड मी हाउ टू डू इट, ठीक है चलेगा ना? ठीक है ओके ठीक है सर। और जो भी मतलब डिस्कशन हम लोग ऐसा नॉर्मल रूम में मतलब अपना जो ये कर रहे हैं ऐसे, हाँ यही वैसे ही करना डिस्कशन होगा ना वहाँ पर भी, तो हाँ 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 ठीक है। और मॉडल्स का पूछ लिया था बोले वी आर लर्निंग विल बी डन इन नेक्स्ट ओके 15 days हाँ श्योर मैं बोल दूंगा। तो उनको मैं भेज पहले आपको भेजता हूँ सर, आप मुझे वो करिए, ठीक फिर उसके बाद मैं उनको भेजता हूँ, ठीक चलेगा ना? यस, ओके ओके थैंक यू तो सो मच सर। हाँ मैं काम हर्ष, हाँ भाई। मैंने ना ग्रुप पे मैसेज किया था आपके नाम से, मतलब मैं चाह रहा था आपसे बात करना, बट आपने आई थिंक आपका नंबर मेरे पास नहीं था, ग्रुप में भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कौन आपका नंबर, सॉरी, तो मेरे को आप, नहीं हाँ पता था। ओके। हाँ, मैंने आपका नाम सरनेम के साथ डाला था, बट यू डिडंट रिप्लाई, सो प्लीज कौन से मुझे ग्रुप में आपसे ना डाला था? थोड़ा सा ना बात करनी है रिलेटेड टू प्रीवियस टॉक जो भी क्लासेस में हुए हैं, तो अगर आप एक बार मुझे हाँ ड्रॉप हाँ कर दो तो। चलेगा, नो वरीज मैं बताता हूँ, यस। ओके, थैंक यू। ओके सर, आई विल अपडेट यू ठीक है एंड लेट यू नो, ठीक ओके। है ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम हाँ हाँ और एक चीज निकल गया ओके गाइस थैंक यू सी यू टुमारो बाय थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय